کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں دولت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی وہاں سکون ہوتا ہے، اور کچھ گھروں میں ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن دل بے چین رہتے ہیں۔ ایک عورت نے بھی یہی سوال اپنی ماں سے کیا تھا۔ اس کے گھر میں کھانا تھا، کپڑے تھے، ضروریات پوری تھیں، لیکن گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ پھر اس کی ماں نے اسے 10 ایسی اسلامی باتیں بتائیں جن میں سے پہلی ہی بات نے اس کی سوچ بدل دی، لیکن ان 10 باتوں میں سے ایک ایسی تھی جسے وہ سب سے معمولی سمجھتی تھی، اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ شاید اسی وجہ سے اس کے گھر کا سکون کم ہو رہا تھا۔ آج کی کہانی میں ہم اسی سفر کو جانیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سارہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میری زندگی بظاہر ایک عام گھریلو عورت کی زندگی تھی۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنا، بچوں کو جگانا، ناشتہ تیار کرنا، شوہر کو کام کے لیے بھیجنا، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، بچوں کا خیال رکھنا، اور پھر رات تک یہی معمول۔ میرا گھر بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ 2 بیڈروم، ایک چھوٹا سا لاؤنج، کچن اور ایک چھوٹی سی بالکونی، لیکن میں اپنے گھر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی کہ گھر صاف رہے، کھانا وقت پر بنے اور بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر میرے شوہر نے ایک معمولی سی بات کہی، سارہ آج ناشتہ تھوڑا دیر سے ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن میں پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ میں فوراً جواب دے بیٹھی، میں سارا دن کام کرتی ہوں، آپ کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ ناشتہ دیر سے کیوں ہوا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر نے مزید کچھ نہیں کہا۔ بچے بھی خاموش بیٹھے رہے۔ چند لمحوں بعد وہ دفتر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ میں کچن میں گئی اور خاموشی سے برتن دھونے لگی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، میں اتنی جلدی غصے میں کیوں آ جاتی ہوں؟ دوپہر کو میری والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے معمول کے مطابق پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ میں نے پہلے تو کہا، الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھ لیا، سچ بتاؤ تم پریشان ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، امی سمجھ نہیں آتا میرے گھر میں سکون کیوں نہیں رہا۔ میں کوشش کرتی ہوں، پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، بحث اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ امی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بہت نرم لہجے میں بولے، بیٹی کبھی کبھی ہم گھر کی چیزوں کو درست کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گھر کے دل کو درست کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، گھر کے دل کو کیسے درست کریں؟ امی نے کہا، اسلام نے ہمیں گھر میں سکون اور خیر کے بہت سے راستے سکھائے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، آج سے ایک ساتھ سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کرنا، بس ایک ایک عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ پھر انہوں نے پہلی بات بتائی، راز نمبر 1، گھر میں اللہ کا ذکر۔ امی نے کہا، بیٹی اپنے گھر کو صرف صفائی اور سامان سے آباد نہ سمجھنا، گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اس بات کو غور سے سنا۔ انہوں نے کہا، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، دعا اور اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو آدن الہی سے جوڑتے ہیں۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میں نمازوں کے ساتھ اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا قرآن پڑھنے کا معمول بھی بہتر کروں گی۔ اگلی صبح فجر کے بعد میں نے قرآن پاک کھولا۔ بچے ابھی سو رہے تھے، گھر خاموش تھا۔ میں نے چند آیات پڑھے، پھر دعا کی، اللہ میرے گھر میں محبت، سکون اور خیر عطا فرما، میرے شوہر اور بچوں کے دلوں میں محبت رکھ، اور مجھے بھی نرم دل اور صبر والی بنا۔ دعا کرتے ہوئے مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن میرا دل مسئلے سے نمٹنے کے لیے مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا۔ راز نمبر 2، گھر میں سلام کو عام کرنا۔ امی نے مجھے دوسری بات بھی سمجھائی۔ انہوں نے کہا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کو عادت بناؤ۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے،
लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कई मर्तबा घर में दाखिल होकर सीधा अपने कामों में लग जाती थी। अगले दिन जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने मुस्करा कर कहा, अस्सलाम अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ये सिर्फ 2 जुमले थे, लेकिन घर के माहौल में एक नरमी सी महसूस हुई। फिर बच्चों ने भी यही आदत अपनाना शुरू कर दी। राज नंबर 3, खाने में शुक्र। उम्मी ने कहा, बेटी घर में जो रिस्क आए इसे मामूली ना समझना। इस दिन मैंने रात के खाने पर बच्चों से कहा, आज सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना वही था, सादा दाल चावल और सलाद, लेकिन इस रात मुझे वो खाना पहले से ज्यादा खूबसूरत लगा। मुझे महसूस हुआ, बरकत सिर्फ ज्यादा चीजों का नाम नहीं, मौजूद चीजों की कदर करना भी है। कुछ दिन गुजरे, मैं अपनी माँ की बताई हुई छोटी छोटी बातों पर अमल कर रही थी, लेकिन अभी भी घर में एक मसला बाकी था, मेरा गुस्सा। मैं कई मर्तबा बच्चों की छोटी गलतियों पर भी आवाज ऊंची कर देती और फिर बाद में खुद पछताती। एक शाम मेरा छोटा बेटा पानी का गिलास गिरा बैठा। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। पुराने दिनों में शायद मैं फौरन गुस्से से बोलती, लेकिन इस बार मैं चंद सेकंड खामोश रही। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आओ मिलकर साफ करते हैं। मेरा बेटा हैरत से मेरी तरफ देखने लगा, फिर मुस्करा कर बोला, उम्मी आपको गुस्सा नहीं आया? ये सवाल सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे मेरी आवाज के लहजे तक को महसूस करते हैं। इसी रात मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, घर में बरकत का आगाज शायद मेरे अपने रवैये से भी होना चाहिए। लेकिन इसी रात मेरी माँ का दोबारा फोन आया। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अगले मरहले के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने कहा, सारा, अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूं जिसे अक्सर लोग मामूली समझते हैं, लेकिन घर के सुकून में इसका किरदार बहुत बड़ा है। मैंने पूछा, उम्मी वो क्या है? उम्मी ने कहा, कल मुझे दोबारा फोन करना, मैं तुम्हें बाकी राज बताऊंगी। फोन बंद हो गया। मैं देर तक सोचती रही, वो कौन सी बात थी? क्या वो शौहर के साथ हसन सलूक से मुताल्लिक थी? क्या वो सदका था? क्या वो सब्र था? फिर कोई ऐसी बात जिसे मैं रोजाना करती थी लेकिन कभी उसकी अहमियत नहीं समझी? इसका जवाब अगले हिस्से में सामने आएगा। वो राज जिसे मैं मामूली समझती रही। पिछले हिस्से में सारा ने अपनी वालिदा से घर के सुकून और बरकत के बारे में बात की। इसने नमाज, जिक्र, सलाम, शुक्र और अपने रवैये में नरमी लाने की कोशिश शुरू की। लेकिन इसकी वालिदा ने कहा था, अभी कुछ अहम बातें बाकी हैं, और आज सारा को उन्हीं बातों का जवाब मिलने वाला था। स्ट्रॉन्ग हुक। उम्मी ने फोन पर मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटी, तुम अपने घर में एक दूसरे के हुकूक का कितना ख्याल रखती हो? मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं सारा दिन घर के काम करती थी, खाना बनाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे घर की बरकत का ताल्लुक मेरे रवैये, मेरी जुबान और मेरे घर वालों के हुकूक से भी हो सकता है। फिर उम्मी ने मुझे चंद ऐसी बातें बताईं जिन पर मैंने अमल शुरू किया, लेकिन उनमें से एक बात ने मेरे शौहर के साथ मेरे ताल्लुक को इस तरह बदल दिया कि मैं खुद हैरान रह गई। और आखिर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे समझा दिया कि बरकत सिर्फ घर में आने वाली चीज नहीं, घर के अंदर पैदा होने वाला सुकून भी है। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह मैं फजर के बाद अपनी माँ के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मुझे रात से ही तजस्सुस था कि वो आखिर कौन सी बात बताने वाली है। कुछ देर बाद फ़ोन बजा। मैंने फ़ौरन उठाया। अस्सलाम अलैकुम उम्मी। उम्मी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन आपने कल जो बात कही थी वो मुझे अभी तक याद है। उम्मी मुस्कुराएं। उन्होंने कहा, तो फिर सुनो, लेकिन याद रखना, बरकत का मतलब ये नहीं कि घर में हमेशा बहुत ज्यादा पैसा हो। बरकत ये भी है कि थोड़ी चीज काफी हो जाए, दिल मुतमईन हो, घर में मोहब्बत हो और इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। मैं खामोशी से सुनती रही।
राज नंबर 4, शौहर और घर वालों के साथ हसन सुलूक। उम्मी ने कहा, बेटी घर के सुकून के लिए अपनी जुबान और रवैये का ख्याल रखो। उन्होंने मुझे समझाया कि गुस्से में बोले गए अल्फाज बाज़ औक़ात बहुत देर तक दिल में रह जाते हैं। मैंने अपने पिछले दिन याद किए। कितनी बार मैं थकन की वजह से शौहर से सख्त लहजे में बात कर देती थी। कितनी बार बच्चे कोई गलती करते तो मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं ये सब काम जानबूझकर नहीं करती थी। मैं सिर्फ थकी हुई होती थी। लेकिन उम्मी की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं थकी हुई हूं तो क्या मेरे घर वालों को मेरे गुस्से की सज़ा मिलनी चाहिए? इस दिन मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। जब भी मुझे गुस्सा आता मैं फ़ौरन जवाब देने के बजाय चंद लम्हे खामोश रहती, पानी पीती, गहरी सांस लेती और खुद से पूछती, क्या ये बात अभी कहना ज़रूरी है? कई मर्तबा जवाब होता, नहीं, और मैं खामोश हो जाती। राज नंबर 5, फजूल खर्ची से बचना। उम्मी ने अगली बात घर के खर्च के बारे में की। उन्होंने कहा, बेटी घर का बजट बनाओ, ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझो। मैंने इसी दिन अपने किचन का जायज़ा लिया। मुझे मालूम हुआ कि कई चीज़ें ऐसी थीं जो मैं सिर्फ इसलिए खरीद लेती थी क्योंकि दुकान पर नज़र आ जाती थी। कभी बच्चों के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें, कभी किचन का कोई नया सामान, कभी ऐसी चीज़ जिसकी वाकई ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई। ज़रूरत, घर का ज़रूरी खर्च, बच्चों की ज़रूरत, बचत। अब मैं बाजार जाने से पहले लिस्ट बनाती और कोशिश करती कि इसी के मुताबिक खरीदारी करूं। एक महीने बाद जब मैंने खर्च लिखकर देखा तो मुझे खुद हैरत हुई। कुछ रकम बच गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने सोचा, शायद बरकत का एक मतलब ये भी है कि इंसान अपने मौजूद वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करे। राज नंबर 6, सदका और दूसरों का ख्याल। एक दिन मैंने बच्चों के कपड़े तरतीब दिए। कुछ कपड़े ऐसे थे जो बिल्कुल अच्छे थे लेकिन बच्चों के लिए छोटे हो चुके थे। पहले मैं उन्हें एक डब्बे में रख देती, लेकिन इस बार मैंने सोचा, अगर ये किसी ज़रूरतमंद बच्चे के काम आ जाएं तो। मैंने कपड़े अलग किए, कुछ खिलौने भी अलग किए और शौहर से मशवरा करके उन्हें एक ज़रूरतमंद ख़ानदान तक पहुंचाया। बच्चों को भी साथ शामिल किया। मेरी बेटी ने पूछा, उम्मी हम अपनी चीज़ें क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा, बेटा जब अल्लाह ने हमें किसी चीज़ की गुंजाइश दी है तो हमें दूसरों को भी याद रखना चाहिए। वो खामोशी से सुनती रही। फिर इसने अपना एक पसंदीदा खिलौना भी उठाकर डब्बे में रख दिया। मैंने इसे देखा तो मेरा दिल भर आया। राज नंबर 7, घर में शुक्र की आदत। उम्मी ने एक और बात कही, हर वक्त इस चीज़ को मत देखो जो नहीं है, जो है इसे भी देखो। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने रात के खाने पर एक नई आदत शुरू की। हम सब एक एक ऐसी चीज़ बताते जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मेरा बेटा कहता, मैं अपने खिलौनों के लिए शुक्र अदा करता हूँ। बेटी कहती, मैं अपनी उम्मी और अबू के लिए शुक्र अदा करती हूँ। और मैं हर रात कहती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरा घर और मेरे अपने लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की बातें भी बदलने लगे। पहले वो कहते, मुझे ये चाहिए। अब कभी कभी कहते, उम्मी हमारे पास तो ये पहले से है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी तब्दीली थी। फिर एक दिन, एक शाम मेरे शौहर घर आए। वो कुछ परेशान थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, आज दफ्तर में एक मुश्किल मसला हो गया है। पहले मैं शायद फौरन अपनी परेशानियों की बात शुरू कर देती, लेकिन इस दिन मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई। मैंने कहा, आप पहले आराम करें, फिर बात करते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, सारा आजकल तुम बहुत बदल गई हो। मैंने मुस्करा कर पूछा, अच्छी या बुरी? वो भी मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छी। घर में पहले से ज्यादा सुकून महसूस होता है। ये जुमला सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे एहसास हुआ कि घर की बरकत सिर्फ चीज़ें जमा करने से नहीं आती,
मुझे एहसास हुआ कि घर की बरकत सिर्फ चीज़ें जमा करने से नहीं आती। कभी कभी एक नर्म जुमला भी घर के माहौल को बदल देता है। लेकिन फिर एक इम्तिहान आया। इसी हफ्ते घर का एक गैर मुतवक्के खर्च सामने आ गया। किचन की एक ज़रूरी चीज़ खराब हो गई। इसे ठीक करवाने के लिए रकम चाहिए थी। मैंने बजट देखा। रकम बहुत महदूद थी। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गई। फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, बरकत का मतलब ये नहीं कि आजमाइश नहीं आएगी। बरकत ये भी है कि आजमाइश के वक्त दिल अल्लाह से जला रहे। मैंने नमाज पढ़ी, दुआ की और फिर शौहर के साथ बैठकर सुकून से मसले का हल सोचा। हमने कुछ गैर ज़रूरी खर्च मुअख्खर किया और ज़रूरत पूरी हो गई। इस रात मुझे एक अजीब सा इत्मीनान था। मसला आया था, लेकिन घर में लड़ाई नहीं हुई। कोई एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे रहा था। हमने मिलकर मसला हल किया। और यही वो चीज़ थी जिसे मैं पहले नहीं समझती थी। रात को मैंने अपनी डायरी खोली। अब मेरे सफ़े पर 7 बातें लिखी थीं। अल्लाह का जिक्र और नमाज, घर में सलाम, रिस्क पर शुक्र, घर वालों के साथ अच्छा रवैया, फजूल खर्ची से बचना, ज़रूरतमंदों का ख्याल, शुक्र की आदत। लेकिन अभी 3 राज बाकी थे और मेरी माँ ने ख़ास तौर पर कहा था, आखिरी 3 बातें तुम्हें ज़रूर याद रखनी है। मैंने अगले दिन उनसे पूछा, उम्मी, बाकी 3 क्या है? उम्मी ने कहा, वो 3 बातें तुम्हें सिर्फ सुननी नहीं, अपनी जिंदगी में महसूस भी करनी है। मैं हैरान रह गई। आखिर वो आखिरी 3 राज क्या थे? और क्या सारा वाकई अपने घर में वो सुकून पैदा कर पाएगी जिसकी वो इतने अरसे से तलाश कर रही थी? इसका जवाब आखिरी हिस्से में होगा। आखिरी 3 राज जिन्होंने सारा का घर बदल दिया। पिछले हिस्से में सारा ने 7 अहम बातें अपनी जिंदगी में शामिल की। घर में शुक्र, हसन सुलूक, समझदारी से खर्च और दूसरों का ख्याल रखने की आदत पैदा होने लगी थी। लेकिन इसकी वालिदा ने कहा था, आखिरी 3 बातें सिर्फ सुनना नहीं, अपनी जिंदगी में महसूस करना। स्ट्रॉन्ग हुक। उम्मी ने आखिरी 3 राज बताते हुए मुझसे कहा, बेटी, अगर तुम उन बातों को समझ लो तो तुम्हें हर मुश्किल के बाद अपने घर को दोबारा जोड़ने के लिए किसी बड़े हल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने पहली बात बताई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो काम मैं रोजाना करती थी, मगर इसमें वो चीज़ शामिल नहीं थी जो इसे शामिल करनी चाहिए थी। और आखिरी राज, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि इसका ताल्लुक मेरे घर की सफाई से नहीं, मेरे दिल की सफाई से था। राज नंबर 8, मुआफ़ी और दरगुजर। उम्मी ने कहा, बेटी, घर में हर इंसान से गलती होती है। अगर हर गलती को दिल में जमा करती रहूगी तो घर मोहब्बत की जगह शिकायतों से भर जाएगा। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे याद आया कि मैं कई पुरानी बातें दिल में रखती थी। शौहर ने कभी कोई बात कही थी, किसी दिन बच्चों ने कोई शरारत की थी, किसी रिश्तेदार की कोई बात मुझे बुरी लगी थी। बातें गुजर गई थीं, लेकिन मैं उन्हें अपने दिल में संभाल कर बैठी थी। उम्मी ने कहा, हर बात को भूल जाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात को दिल का बोझ बनाना भी जरूरी नहीं। जहां मुमकिन हो मुआफ करो, इस्लाह करो और आगे बढ़ो। ये बात मेरे दिल में उतर गई। इसी दिन शाम को मेरे शौहर ने एक पुरानी बात का जिक्र किया। पहले शायद मैं फौरन नाराज हो जाती, लेकिन इस बार मैंने खामोशी से कहा, जो हुआ इसे दोबारा दोहराने से मसला हल नहीं होगा। हम आगे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ लम्हे मुझे देखते रहे, फिर बोले, शुक्रिया। सिर्फ एक लफ्ज़ था, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे महसूस हुआ जैसे घर में एक और खिड़की खिल गई हो। राज नंबर 9, घर में दुआ और अच्छी बातों की आदत। उम्मी ने मुझे कहा, अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया के काम ना सिखाओ, उन्हें दुआ करना भी सिखाओ। मैंने इस दिन से बच्चों के साथ छोटी छोटी दुआएं याद करना शुरू की। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर से निकलते वक्त मसनून दुआ, सोने से पहले अज़कार, और हर रात अपने घर के लिए दुआ। हम सब मिलकर दुआ करते। मैं अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखती और कहती, अल्लाह तुम्हें नेक, खुश और कामयाब रखे। मेरा बेटा फौरन कहता, और उम्मी को भी।
हम सब हंस पड़ते। एक दिन मेरी बेटी ने खुद मेरे पास आकर कहा, उम्मी आज आप मेरे लिए दुआ करेंगी। मैंने इसे गिले लगाया और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को दी जाने वाली सबसे खूबसूरत चीज़ हमेशा महंगा खिलौना या नए कपड़े नहीं होते। कभी कभी माँ की जुबान से निकली हुई एक मुखलिस दुआ भी बच्चे के दिल में जिंदगी भर रह जाती है। राज नंबर 10, घर को मोहब्बत से संभालना दिखावे के लिए नहीं। अब सिर्फ आखिरी राज बाकी था। मैंने उम्मी से पूछा, उम्मी 10वां राज क्या है? उन्होंने कहा, बेटी अपने घर का मवाजना दूसरों के घर से करना छोड़ दो। मैं बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि शायद यही वो बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा थकाया था। सोशल मीडिया पर किसी का खूबसूरत घर देखती तो मुझे अपना घर छोटा लगता। किसी के किचन की वीडियो देखती तो मुझे अपना किचन पुराना लगता। किसी के नए फर्नीचर की तस्वीर देखती तो मुझे अपनी चीजें कम लगने लगती। उम्मी ने कहा, दूसरों की नेमत देखकर अल्लाह का शुक्र करो, अपने घर को कमतर समझकर अपना सुकून मत केवा। इस दिन मैंने मोबाइल एक तरफ रखा। मैंने अपने घर को गौर से देखा। वो बहुत बड़ा नहीं था, फर्नीचर भी मामूली था, किचन भी सादा था, लेकिन इसी घर में मेरे बच्चों की हंसी थी। इसी घर में मेरे शौहर की वापसी का इंतजार था। इसी घर में मेरी नमाज की जगह थी। इसी घर में मेरी माँ की दुआएं थीं। और अचानक मुझे अपना घर बहुत खूबसूरत लगने लगा। असल तब्दीली। कुछ महीने गुजर गए। एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरा बेटा अपने खिलौने समेट रहा था। मेरी बेटी अपनी किताबें तरतीब दे रही थी। मेरे शौहर लाउंज में बैठे बच्चों से बात कर रहे थे। मैंने कुछ लम्हों के लिए काम रोक दिया। दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने घर को देखा और मेरे ज़हन में वो दिन आ गया जब मैं अपनी माँ से रूकर पूछ रही थी, उम्मी मेरे घर में सुकून क्यों नहीं? मुझे जवाब मिल चुका था, सुकून किसी एक चीज़ का नाम नहीं, ये बहुत सी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। मैंने अपनी डायरी निकाली। इसके पहले सफ़े पर वो 10 बातें लिखी थीं। घर में खैर और सुकून के लिए मेरी याद रखने वाली 10 बातें। 1. नमाज और अल्लाह का जिक्र। 2. घर में सलाम को आम करना। 3. रिस्क पर शुक्र करना। 4. घर वालों के साथ हसन सलूक। 5. फजूल खर्ची से बचना। 6. ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना। 7. शुक्र की आदत पैदा करना। 8. जहां मुमकिन हो मुआफ़ और दरगुजर करना। 9. बच्चों को दुआ और अच्छी इस्लामी आदतें सिखाना। 10. अपने घर का दूसरों से मवाजना न करना। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, मैंने उन बातों को किसी जादुई नुस्खे की तरह नहीं लिया। मैंने समझा कि बरकत अल्लाह ताला की अता है और हमें अपने अमाल, दुआ, शुक्र, इबादत और अच्छे अखलाक के ज़रिए अल्लाह की रज़ा तलाश करनी चाहिए। हर घर में आजमाइशें आती हैं। हर घर में कभी इख्तिलाफ होता है, कभी माली मुश्किल होती है, कभी बीमारी आती है, कभी दिल उदास होता है। लेकिन इंसान का रवैया ये तय करता है कि वो मुश्किल वक्त में घर को मज़ीद तोड़ता है या मोहब्बत के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। एक रात मेरे शौहर ने मुझसे कहा, सारा, तुम्हें याद है कुछ अरसा पहले तुम कहती थीं कि हमारे घर में सुकून नहीं? मैं मुस्करा दी। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है हमारा घर पहले से ज्यादा पुरसुकून है। मैंने जवाब दिया, घर नहीं बदला, शायद हम बदल गए हैं। वो मुस्कराए और मैंने दिल ही दिल में अपनी माँ के लिए दुआ की। आखिरी जज्बाती लम्हा। इस रात बच्चे सो चुके थे। मैं नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठी थी। मेरे हाथ दुआ के लिए उठे। मैंने कहा, अल्लाह मेरे घर को सिर्फ दुनिया की चीज़ों से नहीं, अपनी रहमत से आबाद रख। हमारे रिस्क में हलाल बरकत अता फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत रख। हमें एक दूसरे के हुकूक समझने और अदा करने की तौफीक दे। और हमारे बच्चों को नेक साले और हमारे लिए सिद्क जारिया बना। दुआ खत्म की। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू परेशानी के नहीं थे, शुक्र के थे। कहानी का असल सबक। अगर आप भी एक शादीशुदा खातून हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं और कभी कभी महसूस करती हैं कि आपकी मेहनत नजर नहीं आती, तो याद रखें,
आपके घर की असल खूबसूरती सिर्फ साफ फर्श, खूबसूरत पर्दों और महंगे फर्नीचर में नहीं। असल खूबसूरती इस घर में है जहाँ नमाज की जगह हो, सलाम की आवाज़ हो, रिस्क पर शुक्र हो, गलती पर मुआफ़ी हो, बच्चों के लिए दुआ हो और एक दूसरे के लिए दिल में जगह हो। अगर इस कहानी की कोई एक बात आपके दिल को लगी है तो कमेंट में लिखी। अल्लाह मेरे घर में सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन। और अगर आपको ऐसी इस्लामी फैमिली और घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सबक आमोज़ कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमारे सब घरों को ईमान, मोहब्बत, सुकून, हलाल रिस्क और बरकत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।